Hello everyone, myself Rehana Sheikh and I am going to teach you SP of 11th standard. See, this year we have total 12 chapters like last year. Let's start with the index part. Your first chapter is secretary, second chapter is joint stock company, third formation of a company, fourth documents related to formation of a company, fifth members of a company, sixth directors and key managerial personnel of a company, seventh company meetings 1, eighth company meetings 2, ninth business communication skills of a secretary, 10th chapter is correspondence with directors, 11th chapter is correspondence with banks and 12th chapter is correspondence with statutory authorities. Let's start with the first chapter, that is secretary. In secretary we have to study origin of secretary, where the word secretary is originated from, meaning and definition, features and importance, types of secretary. In types of secretary we have to study two types of secretary. One is personal secretary and another one is institutional secretary. Under institutional secretary there are four types of secretary. One is secretary of non-profit association, second one is secretary of a cooperative society, third secretary of joint stock company, fourth secretary of government department. Next, functions of secretary, qualities of secretary. But this year, due to COVID-19, importance of secretary is not going to come for your exam. Importance of secretary will not be asked for your exam. It is a non-evaluative questions. It is only meant for self-study, only for this year. So, question on this topic will not come for your exams. Let's start with the introduction part. First, see, as we all know, Indian economy is fast developing and has fastest growing service sector in the world. Various forms of organizations have emerged in the present economic situations. ऐसे आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी एक फास्ट डेवलपिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है वर्ल्ड में. अगर आप वर्ल्ड के अंदर कंपैरिजन करोगे इंडियन इकोनॉमी को, तो इंडियाज इकोनॉमी इज अ फास्टेस्ट डेवलपिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर में काउंट किया जाता है. तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग टाइप की कंपनीज एमर्ज हुई है इस प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर. एमर्ज मीन्स अराइज हुए हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए हैं बिकॉज ऑफ ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन दी वर्ल्ड. अब सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर मीन्स जो सर्विस से रिलेटेड है, जैसे कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विस से रिलेटेड है. टीचिंग, कस्टमर केयर, ये सब सर्विस से रिलेटेड है. तो इंडिया के अंदर ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर के वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन. नाउ अगर बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज होंगे तो फॉर दैट फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस. कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. फाइनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. विदाउट फाइनेंस आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन ही नहीं कर सकते. तो अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना चाहते हो, फॉर्म करना चाहते हो, तो यू नीड अ फाइनेंस. आफ्टर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के बाद अगर आप उसको स्मूथली रन करना चाहते हो, उसके अंदर कोई मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते हो, उसको आप एक्सपांड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, या फिर उसके अंदर आप डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते हो, तो ये सभी चीज़ों के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है.
तो फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, run a business, modernize a business, expand a business and diversify it. The role of financial management has become very important to the corporate world. Finance है लेकिन फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है वही आपको आता नहीं है, तो बिजनेस जो आपने सेट किया है, जो भी गोल आपने सेट किया है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए आपको फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करना होगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स having special capabilities and knowledge to grow business have now become important for our present Indian business scenario. तो जिनके पास में एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स होंगे, जिनके पास में एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स में भी जिनके पास में स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटीज होंगी, जिनके पास में स्पेशल नॉलेज होगा, जो बिजनेस को बढ़ाने का नॉलेज और कैपेबिलिटी रखता है, वो इम्पोर्टेंट पर्सन या फिर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो। अगर आप करंट बिजनेस सिनेरियो को देखोगे या फिर करंट बिजनेस को देखोगे तो यहाँ पर एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स चाहिए, जिनको स्पेशल कैपेबिलिटीज है, जिनको स्पेशल नॉलेज है, जो केपेबल पर्सन है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वैसे ही पर्सन को आप अपॉइंट करोगे और वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दिस प्रेजेंट इंडियन बिजनेस सिनेरियो। The profession of secretary is one such profession which caters to the changing demand of businessmen and organizations. तो ये जो एक्सपर्ट इंडिविजुअल है वो एक सेक्रेटरी है, जो एक प्रोफेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी का प्रोफेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है, जो ये सारे नीड्स जो अभी हमने पढ़े, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमने देखा कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या कैपेबिलिटीज है, कौन सी नॉलेज चाहिए, ये एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी पोजेस करता है। एंड यही जो चेंजिंग डिमांड्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो उनके नीड्स को केटर करता है, उनके नीड्स को फुलफिल करता है। सो ऐसे ये प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी एग्जिस्टेंस में आया। क्लियर? सो इंडियन इकोनॉमी, या फिर अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखोगे तो ये फास्ट डेवलपिंग और फास्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर है वर्ल्ड के अंदर, जिसके वजह से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज हुए हैं। अगर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट के अंदर आएंगे तो उसके लिए फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, रन अ बिजनेस, मॉडर्नाइज अ बिजनेस, एक्सपांड अ बिजनेस एंड टू डाइवर्सिफाई अ बिजनेस। अगर आपके पास में फाइनेंस है पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको करने नहीं आता तो वो फाइनेंस का कोई यूज नहीं। तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड। तो इसको ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स चाहिए, जिनके पास में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जिनके पास में नॉलेज होनी चाहिए, जो इस प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो को कोप अप कर सके। तो ये बिजनेस सिनेरियो को कोप अप करने के लिए एक सूटेबल पर्सन है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी एक सूटेबल, एक प्रोफेशनल पर्सन है जो बिजनेस के सारे चेंजिंग डिमांड्स के प्रॉब्लम्स को, चेंजिंग डिमांड्स को केटर कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। द सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस डील्स विद द ओरिजिन। जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट है ये डील करता है कि कहाँ से ये सेक्रेटरियल वर्ड आया है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या फीचर्स है, कितने टाइप्स के सेक्रेटरी मार्केट के अंदर है, सेक्रेटरी का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, उनका क्या क्वालिटीज है, उनके क्या क्वालिफिकेशंस है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, ये सारा चीज हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में पढ़ेंगे। ओके,
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी वर्ड आया कहाँ से है? अंटिल द लेट 19th century, person involved in daily correspondence and the activities related to finance has assumed the title secretary. So until the late 19th century, जो पर्सन डेली करस्पॉन्डेंस करता है, डेली करस्पॉन्डेंस मीन जो डेली लिखा पढ़ी का काम करता है, जो डेली करस्पॉन्डेंस या फिर डेली के एक्टिविटीज जो फाइनेंस से रिलेटेड है उसमें वो परफॉर्म करता है, तो 19th सेंचुरी तक उनको सेक्रेटरी एज्यूम करते थे. नाउ द लैटिन वर्ड सेक्रेटम और सेक्रेटस विच मीन्स द सीक्रेट. The word secretary is derived from the Latin word secretarius, which means someone who works for a person of great importance. So it is derived, ये जो secretary word है, it is derived from the Latin word जिसका मतलब था, Latin word secretarius, जिसका मतलब है एक पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम करता है, जो उनके लिए ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है, उसी को सेक्रेटरियस बोलते थे. और ये एक लैटिन वर्ड से आया है. सो ये लैटिन वर्ड दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, सेक्रेटम एंड सेक्रेटस, और इसका मीनिंग है सीक्रेट. और ये वर्ड डिराइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस विच मीन्स someone who works for a person of great importance, जो किसी great importance person के लिए काम करता है. So it is derived from the Latin word which means secretarius, which means someone who works for a person of great importance. So mark this point as important because this will come for objective type questions. Okay, so next is, in the Roman times, scribe was a professional letter writer or one who maintains confidential record. तो Latin word secretarius means जो एक important person के अंडर काम करता है उसको secretarius बोलते थे, and it is derived from the Latin word. इन रोमन टाइम्स, अगर आप रोमन टाइम्स को देखोगे तो सेक्रेटरी को स्क्राइबे बोलते थे, जिसका मीनिंग है प्रोफेशनल लेटर राइटर. जो प्रोफेशनल लेटर राइटर होते थे उस टाइम पे, या फिर जो अपने बॉस के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे, उनको सेक्रेटरी बोलते थे. और उनका जो टर्म था वो स्क्राइबे करके कहा जाता था. तो इन रोमन टाइम्स स्क्राइबे वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर. जो प्रोफेशनल लेटर राइटर होते थे उनको आप सेक्रेटरी कंसीडर करते थे रोमन टाइम्स में, या फिर वो पर्सन जो अपने बॉस के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करता था. नेक्स्ट इज, इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सेक्रेटरी वॉज रेफर्ड टू एज अमत्या, सचिवा और चिटनिस, विच मीन्स अ पर्सन who does secretarial works. तो in ancient Indian history, secretary was referred as amatya, sachiva or chitnis, which means a person who does a secretarial work. So Indian ancient history में secretary को अमत्या, सचिवा और चिटनिस कहा जाता था, जिसका मतलब है एक पर्सन जो secretarial work परफॉर्म करता है उसी को secretary बोलते हैं. तो तीन वर्ड्स हमने देखे फ्रॉम लैटिन वर्ड्स सेक्रेटरियल्स विच मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स अंडर अनदर पर्सन. इन रोमन टाइम्स जो स्क्राइबे है, जो प्रोफेशनल राइटर है या फिर जो अपने बॉस के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, उनको स्क्राइबे बोलते थे. एंड इट इज टर्म्ड इन दी रोमन टाइम्स. और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो सेक्रेटरी को अमत्या, सचिवा और चिटनिस कहते थे. इसका मतलब है जो पर्सन सेक्रेटरियल वर्क परफॉर्म करता है उनको अमत्या, सचिवा या फिर आप चिटनिस कह सकते हो. टुडे द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट also have secretaries for various departments functioning under the control of ministry in the Sachivalaya. Okay, thank you.